Very good morning, friends. Commercial correspondence, commercial communication, and the topic today is application, resume, CV. But before we begin our topic, let me remind you that now we have a wonderful group created, an e-group in Google, and I hope you are familiar and a member of that group. And as I've conveyed earlier, that today's topic is rather a kind of universal topic because it applies to commerce, science, and arts as well. Because a day will come that you will have to prepare a resume which becomes effective. Today we have a very wonderful speakers and the most appropriate people to talk on resume and CV. They both belong to ICFAI, a business school. You can see the speakers of today. Professor Prashant Saxena is working with ICFAI Business School. He is an Associate Dean and Faculty of HR. He has done his Masters in HRM, friends, and he has 14 years of experience if we make a total, and bifurcated 6 years in corporate and for the last 8 years in teaching. We welcome you, Thank you. Professor Prashant Saxena. Next to me, Professor Ruchi Tiwari. She is also working with ICFAI Business School, as I mentioned earlier, and she has completed her Masters in Philosophy. Her MPhil is in, she has done her MPhil, and she is pursuing a doctorate in management. She has over 14 years of teaching experience in the same field. So they are the most appropriate people for this topic, and let us hope that the lecture today will definitely enhance your understanding about application and CV. It would help you in examination, and it would surely help you in creating your actual CV as well. Over to Professor Ruchi Tiwari, please. Good morning, everybody. Today we will be talking about resume, as Mr. Sarvaya just introduced you with. And resume is, what he also mentioned, is a very universal thing जो आप सबके लिए important है. आप किसी भी field के लिए हो, आप eventually एक job के लिए जाएंगे और तब ये आपके लिए बहुत important हो जाएगा. So आज मैं, along with my colleague Professor Prashant Saxena, we will be talking about resume writing to you, and I hope that it becomes a meaningful session for you. We'll start. Prashant, we'll run the first slide. Yes, you can see this slideshow, which will help you in getting an understanding on how to build an effective resume. Yeah. Okay. Now, a common question which comes to all of our minds is that what is the amount of time that the employers take? Initially जब आप job के लिए जाते हैं तो कोई भी employer कितना time आपके resume के ऊपर spend करता है? What is the kind of time that they take? So Prashant, if I ask you that, how would you answer? रुचि, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को रिज्यूम भेजता हूं तो एटलीस्ट 2 से 5 मिनट तो मेरे रिज्यूम के ऊपर स्पेंड करते होंगे एम्प्लॉयर, सो दैट वो समझ सकेंगे मेरी स्किल्स, मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या है. ओके. और ऐसा प्रशांत ही नहीं, आई एम श्योर हम सब में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, बट सरप्राइजिंगली not more than 30 to 45 seconds is spent on any resume. Not more than 30 to 45 seconds. That's quite ironical. Quite ironical. और हम at least 30 hours spend करते हैं एक resume बनाने में. इसलिए हमें skillfully resume बनाना है कि वो 30 या 45 seconds में हम जो कुछ भी कहना चाहें वो कह सकें. ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है रुचि. आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी इजी. सो आई सपोज देयर इज अ स्किल दैट इज रिक्वायर्ड to build a resume. So I think that is what is the focus area for today's discussion, and I suppose हमारे जो audience है वो आज जो हम resume writing skill है उसके अंदर काफ़ी कुछ learn कर सकेंगे. So मैं आपको directly next slide पे लेके जाना चाहूँगा. Here you can see what we call as the job search success pyramid, जो कि आइडेंटिकल होता है फॉर मोरलेस एवरीवन और सबके लिए जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं. आप पहला स्टेज देख सकते हैं वेयर इट इज
writing a winning resume is the first stage of this entire pyramid. So उसके बाद ही आगे के प्रोसेस शुरू होते हैं. Second, what you look at is how do you search a job. There is a technique, there is a way by which you can search the ideal job, the kind of job that you are looking at, and क्या आपके further ambitions हैं, उसके basis पे आप job कैसे ढूंढ सकते हैं. Third is prepare for the fair. Fair यहाँ पे इसका specific meaning है कि आप कैसे prepare करते हैं for going to the place जहाँ पे आपका interview होने वाला है. The second last point is on interviewing skills. How do you improve upon जो आप interview के अंदर, interview के duration में आप अपनी बात कहने वाले हैं, अपने questions को कैसे answer करने वाले हैं. How do you improve the interviewing skills, and that all put together lands you into a job. So essentially अगर आपने first stage cross नहीं करा, as what we see, that is writing a winning resume, आगे के stages आने का chance कम ही है. So I suppose the first thing which we need to focus right now is on writing a winning resume. Now resume as we look at it, normally एक resume जो कि corporate में, जो कि companies में prefer किया जाता है, is of 1 page. काफी लोग अपने resumes 2 से 3 पेज, कई बार 4 पेज के envision करते हैं. So ये एक myth है, एक गलत फहमी है, which we have to understand at the college level at least, जहां पे आपके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस है. The resume should be a summary which should be in only 1 page. Now what is a resume and what things do we need to really take care of at the basic, at the start level of building a resume? So if you look at the slides once again, an employer will evaluate you as a person when scanning your resume in these different ways. Neat resume, साफ सुथरा अच्छा resume means neat person, एक अच्छा साफ सुथरा strong personality वाला इंसान. Well organized resume, properly लिखा हुआ, सारी information structured है, so that means a well organized person, a person who provides right kind of activities, right kind of support at the right time. Error free resume, बिना किसी गलती के, that means a careful person, जो कि कोई भी काम करते हुए बहुत ध्यान से काम करता है. And professional appearance, the way you like to work in corporate, they expect you to be a professional. You should display the qualities of your profession. So careful and competent person, जो कि आपको एक अच्छी image देता है before the people who are reading this particular resume. So you have to be neat, well organized, error free, and your resume should look professional. These are the basic essentials for the initial designing, development of your resume. Now if we look at the purpose of the resume, purpose means what is the reason why you are making a resume. आप किस purpose से, किस reason से resume को develop करते हैं. If you look at the slides, identify what you have to offer. The purpose of a resume is वो आप क्या अपने skills, क्या चीज आप offer कर रहे हैं to the employer, वो display करता है. Explains what contributions you can make. आपकी क्या खास skills हैं, आप क्या contribution company में किस area में कर सकते हैं, उस बारे में आपका resume represent करता है आपको. Targeted directly to specific needs of the employer. Employer की जो recruitment needs हैं, जो position उन्होंने open करी है, उसको आप कैसे cater करते हैं, कैसे आप उसको संभालते हैं, कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, that provides this particular information. Can be given to references. अगर ये particular resume आपका reference check करने के लिए use करना है, तो वो information जो आपने दी है, वो correct होनी चाहिए, and references के लिए ये काम आ सकता है. Most important and very very important point is used in the interview as a guide by employer. जो resume में आपने लिखा है, Mr. Sarvaiya, this is a very significant point. Yes, of course. जब कोई interviewer, जब HR person
रिज्यूम लेके आपके इंटरव्यू के टाइम पे बैठेगा तो आपके रिज्यूम में जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे उसका फोकस रहेगा. सो द क्वेश्चंस जो वो आपसे पूछेगा उन रिलेटेड एरियाज में होंगे. सो योर रिज्यूम शुड हाईलाइट दो स्ट्रेंथ्स जहां पे आप चाहेंगे कि आपका इंटरव्यूअर या एचआर का जो पर्सन है वो फोकस करे और आप उन चीजों को प्रॉपरली उसको अपने स्ट्रेंथ्स दिखाने के लिए यूज कर सकें. एंड यस, द मेन पर्पस इज गेटिंग यू एन इंटरव्यू, बिकॉज अगर आपका रिज्यूम आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचा नहीं सकता तो उसका कोई रीजन नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है. सो बहुत सारे रिज्यूम्स में से आपका रिज्यूम कोई भी एम्प्लॉयर क्यों पसंद करेगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो विल गो इनटू द एरिया ऑफ टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग कि रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो कि यूज करी जाती है उसका क्या डिफरेंशिएशन है, क्या उनका मीनिंग्स है. This is the point. I'm sorry to interrupt, but this is the point where students always have questions in the class as well. Right. That they always consider these three things and they mingle them and they get confused. I mean, the exact difference between these three terms which are used in general. Right. Say, for an example, in our topic today also, the exact title is given: so application, resume, and CV. So Right. this was an inner wish of mine that you must talk on this as well. Please. And probably this could even help them understand किस चीज को किस Purpose पर्पस के के लिए लिए use प्रिपेयर किया किया जाता जाता है. True, Exactly. सो मैं जिस पॉइंट पे अभी आपको बात करने जा रहा हूं, इसेंशियली वो गलतियां हमने भी शायद हमारे लेवल पे करी हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपकी ही पहली बार, आपकी ही कोई स्पेसिफिक भूल है, लेकिन ये कंफ्यूजन है जो कि नॉर्मली हर एक स्टूडेंट फेस करता है कि टाइटल क्या लिखा जाए, रिज्यूम लिखा जाए, सीवी लिखा जाए या बायोडाटा लिखा जाए. सो इस बात को हम क्लियरिफाई अभी करने की कोशिश करते हैं. रिज्यूम essentially is a 1-page or 2-page summary of your skills, experience, education, and generally no more longer than a page or 2. So resume आपका एक summary of skills, experience and education है जो कि स्पेसिफिकली जॉब से रिलेटेड, जॉब को ओरिएंटेड एंड जॉब को टारगेट करने के लिए बनाया जाता है. वेर सीवी जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है एंड अ करिकुलम वाइटे एज इट इज नोन इज अ लॉन्गर, मोर डिटेल्ड सिनॉप्सिस, जनरली ओवर अ कपल ऑफ पेजेस लॉन्ग. सो सीवी का जो इसेंशियल पर्पज है इज टू शो वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव डन, जो आपने किया है इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर करियर एंड लाइफ. नॉर्मली करिकुलम वाइटे ऐसी जगहों पर यूज होता है जहां पे आपका प्रमोशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रहा हो, जहां पे आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी पावर्स, सारी एक्टिविटीज जो आपने करी हैं आज तक, उन सबको हाईलाइट करने की जरूरत हो. सो करिकुलम वाइटे इज इसेंशियली फॉर दोज पीपल जो कि ऑलरेडी जॉब में है और वो लोग आगे अपने करियर एडवांसमेंट के लिए या प्रमोशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो करिकुलम वाइटे इज अ लॉन्ग डिटेल and a complete idea of what are the various actions, activities that you have done throughout your career, which is not required as a summary at the initial level where you are there applying for the job essentially. Yes. Then biodata files concentrate more on the individual and his attributes like height, weight, color, skin complexion, and more that describes the person the best, his family details and other things. Biodata का purpose essentially personal attributes को आगे forward करने के लिए आता है. मैं अगर सही मायने में उसका यूज कहूं तो मोर और लेस बायोडाटा शादियों के पर्पज में ज्यादा काम आता है टू एक्सचेंज. सो शायद अभी वो आपके इमीडिएट पर्पज में नहीं है, इमीडिएट फोकस में नहीं है. रादर वी होप कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो बायोडाटा जो है वो आपके पूरे फैमिली बैकग्राउंड, आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर. सो आपको बायोडाटा लिखने की जरूरत नहीं है. सो योर टाइटल शुड बी रिज्यूमे. So, biodata is used in more social terms. Social terms, yes. So that is why मैंने शादी की बात करी जहाँ पे it is more of more general, more social. Right. Okay. And So I'm sorry. resume is the Key thing. title. Absolutely. Yeah. Absolutely.
एंड इनफैक्ट इफ आई कैन ऐड टू दिस, तो सीवी ऑफन जब आप किसी रिसर्च की पोजीशन में हो, जहाँ पे आपके पास बहुत पब्लिकेशंस हो, आपने कई कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया हो, या जैसे प्रशांत ने बोला आपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल किए हैं, तब आपका सीवी होगा. एंड अ सीवी कैन बी एज लार्ज एज 50 पेजेस ऑल्सो. एक 50 पेज का भी सीवी हो सकता है, लेकिन रेज्यूमे कभी भी लाइक प्रशांत सेड एक या दो पेज से, यस, एक या दो पेज से ज्यादा नहीं होगा. So we further our discussion to how do we go forward in building the resume, and I invite Ruchi to create more focus and light on this particular area. Right. So जैसा प्रशांत ने बोला, probably I'll pick it up from there and then get into understanding this, that we are very clear अब कि हम एक resume बना रहे हैं और हम एक CV नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास CV जितना कुछ मसाला ही नहीं है, हम इतना कुछ कह ही नहीं सकते कि हम CV बनाएं. So since we are writing a resume, we have to be very clear that, as Prashant said, that you will write resume on the top. अब आप ये टाइटल लिखें या नहीं लिखें, that is completely irrelevant. But first चीज जो आप सबसे ऊपर लिखते हैं वो है आपका नाम और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. आप कौन है, आपका क्या नाम है, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम है से कमलेश पटेल, तो आप ऊपर लिखेंगे कमलेश पटेल, और जो भी आपका कांटेक्ट है, कांटेक्ट एड्रेस में आप आपका पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, आप आपका फोन नंबर लिखेंगे और आप आपका ईमेल आईडी लिखेंगे. ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एंड जब हम ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम कभी भी वो रॉक्स, हॉट, पिंक वो नहीं लिखेंगे हमारा ईमेल आईडी. हम लिखेंगे kamleshpatel@gmail.com, kamleshpatel@yahoo.com. तो जैसा आप यहाँ देखेंगे, हमने सैंपल में आपके सामने रखा हुआ है, कल्पेश उनका नाम हो गया. ध्यान रखिए, हम अपने नाम के आगे मिस्टर या मिस नहीं लगाते हैं, राइट. वो प्रिविलेज हम दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो हमें मिस्टर या मिस कहें. हम केवल अपना नाम लिखेंगे और फिर हम अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, जिसपे अगर वो आपको कोई लेटर डालना चाहे, कुछ भी डालना चाहे, तो उस पोस्टल एड्रेस से आपके घर पे वो लेटर आ जाएगा. आप आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे और आप आपका ईमेल आईडी लिखेंगे. अब कभी कभी इन सर्टन सिचुएशंस आप किसी गांव में रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस गांव का है और आप पढ़ रहे हैं अहमदाबाद या सूरत या भावनगर में, तो आपका टेम्पररी एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है. इन विच केस आप कौन सा एड्रेस डालें, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि मैं रहता तो यहाँ हूँ, मैं नौकरी सूरत में अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं एड्रेस कहाँ डालूं, भावनगर का डालूं, तालुके का डालूं. तो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन हम दोनों एड्रेस लिख देते हैं. ऊपर हम लिख देंगे करंट एड्रेस, जो आपका अभी प्रेजेंट एड्रेस है या टेम्पररी एड्रेस है, आप वो लिख देंगे, और साथ में आप आपका परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, जो आपका तालुका या गांव का होगा, विच इज डिपिक्टेड ऑन द स्लाइड. अगर आप यहाँ स्लाइड पे देखेंगे तो स्लाइड पे सूजी क्यू, हमने एक फिक्टिशियस नाम ले लिया है, जो एक स्टूडेंट है, उसका करंट एड्रेस डाल दिया है और साथ में हमने उसका एक परमानेंट एड्रेस डाल दिया है. तो आपका टॉप रेडी हो गया, आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए. पोस्ट विच उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड आई विल रिलेट टू व्हाट प्रशांत हैड सेड, आप किसी एम्प्लॉयर के लिए ये रेज्यूमे बना रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस एक एम्प्लॉयर है और आपको पता है कि आप किस नौकरी के लिए डाल रहे हैं. तो लाइक आई विल अगेन पिक अप फ्रॉम व्हाट प्रशांत सेड, जब उन्होंने हमें वो पिरामिड दिखाया था तो हमने बोला था कि फाइनली हम ये रेज्यूमे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक जॉब चाहिए, हमारे पास एक पर्टिकुलर जॉब की वैकेंसी, एक प्रोफाइल क्लियर है. अब हमने थोड़ा सा रिसर्च करके पता करना है कि इस प्रोफाइल में क्या चीजें चाहिए होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक HR के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कि FMCG है, कि फाइनेंशियल कंपनी है. और एक बार आपके दिमाग में ये सब क्लियर हो गया तो एक करियर ऑब्जेक्टिव रेडी हो जाएगा. और एक करियर ऑब्जेक्टिव के लिए फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. आप किस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और आपका प्रोफाइल क्या है. तो अगर आप मार्केटिंग या सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अकाउंटेंसी के जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप HR के जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कॉल सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं, आप एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हर एक का करियर ऑब्जेक्टिव यूनिक होगा. हर एक रेज्यूमे का करियर ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि बाकी पार्ट्स ऑफ अ रेज्यूमे ये पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर हो.
आप मैं सब एक ही कॉलेज से निकल रहे हैं तो हो सकता है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम हो, बट आप फाइनेंस के लिए जा रहे हैं, ये एचआर के लिए जा रहे हैं और मैं मार्केटिंग के लिए जा रही हूँ। इसका डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर जो है वो केवल हमारे करियर ऑब्जेक्टिव से क्लियर होगा। तो जैसा आप स्लाइड में देखेंगे, the purpose of the career objective is to communicate clearly the type of position you are interested in. आप किस तरीके की पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं। Very important, yeah. तो एक एग्जाम्पल जैसा हमने यहाँ पे डाल रखा है, टू ऑब्टेन अ पोजीशन एज फील्ड सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव इन नेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन। हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन विद स्पेशलिटी रिटेलर, हम एक बिग बाजार, स्टार बाजार, विशाल मेगा मार्ट में वहां पे एक रिटेलर के लिए एक मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह अप्लाई कर रहे हैं। दैट विल बी विलिंग टू रीलोकेट एंड वर्क लॉन्ग आवर्स। आपने अपने करियर ऑब्जेक्टिव में ही लिख दिया है कि आपकी एक तैयारी इस बात की है कि आप सूरत छोड़ के अहमदाबाद आने को तैयार हो या आप राजकोट छोड़ के भावनगर जाने के लिए तैयार हैं, वो आपने मेंशन कर दिया है। आपने लिखा है टेक्निकल सेल्स विद एनर्जी रिलेटेड कंपनी, तो वो कितने भी हो सकते हैं। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बट हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि हम किस फील्ड और किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। Just be very specific. फॉर एग्जाम्पल अब आप स्लाइड में देखेंगे तो ऊपर सूजी ने अपना एड्रेस लिख दिया और उसने लिख दिया है टू ऑब्टेन एन एंट्री लेवल पोजीशन इन ह्यूमन रिसोर्स। तो अब उसके दिमाग में ये क्लियर है कि उसकी पोजीशन ह्यूमन रिसोर्स की है और उनको एक एंट्री लेवल की पोजीशन चाहिए। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो एंट्री लेवल पोजीशन फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में हो, वो एक अकाउंटिंग फर्म में हो, वो कहीं भी एचआर की फील्ड में काम करने को तैयार है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे रेज्यूमे का। आफ्टर दिस मैं ये प्रिज्यूम कर रही हूँ कि अगर आपके पास, क्योंकि आप सब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने बारे में एक अच्छी चीज या अपने करियर ऑब्जेक्टिव को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप क्या बताएंगे। आप बताएंगे देखिए मैं एचआर की फील्ड में जाना चाहता हूँ या मैं एक अकाउंटेंसी की फर्म में जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप अपनी डिग्रीज मेंशन करोगे जो आपकी एजुकेशन में आ जाती है, और आप कुछ चीजों का ध्यान रखोगे जो हम स्लाइड्स में दिखा रहे हैं। आप अपनी डिग्री रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करोगे। बहुत भारी भरकम टर्म लगता है कहने के लिए, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऑर्डर में लिखोगे जो आपने 2009 में किया है, 2007 में किया है, 6 में किया है, 5 में किया है। अब इसको बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब एक के बाद एक, क्रम। रिवर्स क्रम, एब्सोल्युटली राइट, क्रम। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल उल्टा क्रम में। तो हालांकि अगर हम आपसे पूछें कि आपने अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए, तो आप सबसे पहले बताएंगे हमारा 10th, हमारा HSC, हमारा ग्रेजुएशन। लेकिन हमारे रेज्यूमे में क्योंकि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की हो जाती है। तो आप सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन मेंशन करोगे। आपने BCA किया है, आपने BCom किया है, आपने BBA किया है, आप सबसे पहले वो लिखेंगे। आप उसके साथ उसके सारे डिटेल्स भी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके पहले आपने 12th किया है, उसके पहले आपने 10th किया है, आप ये लिखोगे। और साथ में आप बाकी सारे डिटेल्स डालोगे, जैसे किस साल में आपने पास किया है, आपने किस कॉलेज से पास किया है। ये डिग्रीज आप इसलिए डालते हो जिससे एम्प्लॉयर को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले कि आप कहाँ कहाँ से निकल के फाइनली बाहर आए हो। अगर पॉसिबिलिटी है, आपके पास स्पेशलाइजेशन है, आप BBA कर रहे हो और आपका कॉलेज आपको HR में स्पेशलाइज करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप लिखोगे BBA HR। मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन दे रहा है तो आप लिखोगे BBA मार्केटिंग। BCom में भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपने अकाउंटिंग किया है, आपने ऑडिटिंग किया है। तो जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो आप आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में ही मेंशन कर देते हैं। आप 10th में भी 12th में आपने साइंस किया है, 12th में आपने कॉमर्स किया है या आर्ट्स किया है, वो आप 12th के साथ लिख देते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि आपने किस कॉलेज से, किस जगह से पास किया है। तो फाइनली आप अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो, आपने अपना 12th कहाँ से किया है, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बाद हमने एक टैब्यूलर टेबल बना करके अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डाली हैं। आप इसको लाइंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबल्स में लिखने से बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आपने कौन से साल में, किस जगह से, किस कॉलेज से और कितने % के साथ अलग अलग डिग्रीज क्लियर किए हैं।
या प्रशांत रुचि, आई थिंक यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने रहता है स्टूडेंट के सामने इज कि स्टूडेंट के मन में शंका होती है कि मैं अपने परसेंटेज लिखूं कि नहीं लिखूं, राइट मैं ग्रेड लिखूं, क्लास लिखूं, क्योंकि मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो पहले डिस्कस करी थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम कैसे इंटरव्यू अचीव करें। तो जो एक रिज्यूमे होता है वो आपका एक मार्केटिंग टूल है। आप उसे अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को, अपनी एजुकेशन को मार्केट करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इन दैट केस अगर आपके परसेंटेज कम है या आपका जो अचीवमेंट है वो इतना आपको स्ट्रांग फील नहीं कराता है, तो उस केस में मैं क्या करूं? शुड आई राइट परसेंटेज इन स्पेसिफिक, या मैं ग्रेड लिखूं, या मैं क्लास लिखूं? व्हाट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट? राइट, आपने खुद ही जवाब दिया प्रशांत। आपने बोला ये एक मार्केटिंग टूल है, तो हमें थोड़ी इंटेलिजेंस लगानी है। अब हमारे पास 48% है और हम अपने रिज्यूमे में 48% डालते हैं, तो जैसा आपने बोला बहुत चांसेस नहीं बनते हैं। पर हम सेकंड डिवीजन डाल देते हैं, तो एटलीस्ट जो हमारा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है जिसके पास हम रिज्यूमे भेज रहे हैं, उसे ये पता है कि ये एक सेकंड डिवीजन स्टूडेंट है, ये 59% भी हो सकता है Exactly. और 48% भी हो सकता है। उसके बाद आपकी स्किल, एटलीस्ट जो रेज्यूमे का पर्पस है, जो प्रशांत ने पहले ही बताया, एक इंटरव्यू मिलना वो पक्का हो जाता है। पर जब आप 48% डाल देते हो तो आप अपने वो पूरे चांसेस किल कर रहे हैं। तो और वैसा आपको- इन रेफरेंस Yes, टू दैट yes. दिस ऐसा भी होता है कि कई बार हमने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी का नाम इतना बड़ा हो कि यू नो वी अपने वोंट आप देम Yes. टू रीड दैट। Correct. तो उस चीज को भी हम हाईलाइट, एज यू सेड मार्केटिंग टूल है, तो वी बस- हैव टू डू दोज Yes, थिंग्स, yes, राइट? yes. कई बार ये होता है कि परसेंटेज बहुत अच्छे हैं लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से आपने पढ़ाई की है वो शायद हो सकता है इतना ज्यादा रेप्यूटेड नहीं है, तो आप अपने परसेंटेजेस को हाईलाइट Highlight करेंगे। करेंगे। सो इट्स ऑल मार्केटिंग। Yes. सो आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि इसमें इशू एथिक्स का नहीं है, क्योंकि of आप course. इंफॉर्मेशन जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आप पूरी इंफॉर्मेशन करेक्टली डेफिनेटली कंपनी को बता रहे हैं। एग्जैक्टली। ओनली थिंग इज कि जब आप इनिशियल अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तब आप उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट है लोगों एग्जैक्टली, को। कौन सी चीजें हाईलाइट Highlight करनी करने की है जरूरत वो है। तो आपका हक है। बिल्कुल। यस यस। So there is nothing अगर like मैं आपको और manipulation. कोई एग्जांपल दूं, तो अगर कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है तो वो उस प्रोडक्ट की कीमत लास्ट बताते हैं, पर उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे वो पहले बताते हैं। ऑफ कोर्स। और अगर कोई प्रोडक्ट का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो सस्ता प्रोडक्ट है, तो वो सबसे पहले बताते हैं आपको 20 रुपए में ये मिल सकता है। एग्जैक्टली। अब इसमें लाइक प्रशांत सेड, और एक चीज का हम सब ध्यान रखेंगे कि हम कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। यस ऑफ कोर्स। इन अ रेज्यूमे वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। इसलिए शायद प्रशांत ने जो पॉइंट बोला वो बहुत सही है कि ये एथिक्स का इशू नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का इशू है। हम कितनी इंटेलिजेंटली अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं वो आपकी स्किल है। आफ्टर दिस आई थिंक सिंस प्रशांत कम्स फ्रॉम, और प्रशांत का थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड है, तो शायद वो ये सारे डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी तरह से ग्रेजुअली बता सकेंगे कि यहाँ से हम क्या क्या चीजें जो हैं, क्योंकि आफ्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। एम्प्लॉयज किस चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको नहीं देते हैं, उनको क्या डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए, मुझे लगता है प्रशांत ज्यादा जस्टिस कर सकेंगे उसको। सो आई हैंड इट ओवर टू यू प्रशांत। Yes. Ruchi, the way you told the audience about educational qualification, it is a very important reason why somebody would employ you. But further to that, market में इतने different type of jobs, इतने different type of activities हैं कि employers जो हैं उनकी needs सिर्फ education qualification से complete नहीं होती. So they want to know more about you. So what more can you tell? आप अपने बारे में और क्या बता सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो भी अपने बारे में बताएंगे क्वालिफिकेशन के अलावा वो आपकी डायरेक्शन को सेट करेगा। एक एम्प्लॉयर की परसेप्शन को आपके बारे में, उसके आपके बारे में विचार क्या डेवलप होंगे उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भेजेगा। सो आप जो भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि आपको वो किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वो आपके बारे में कैसे सोचेंगे और क्या उनके विचार आपके बारे में बनेंगे। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट एरिया विच इज वेयर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बाद अपने जो भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स
ऑनर्स, जो भी चीजें आपने अचीव करी हैं इन ड्यूरिंग द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर एजुकेशन, ऑफ एनी अदर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स, एनी अदर थिंग, वो सब आपको डिस्प्ले करने जरूरी है, बिकॉज ये चीजें आपके पर्सनैलिटी के बारे में और आपके एज अ स्पेसिफिक स्किल होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एम्प्लॉयर को. सो ऑनर एंड अवार्ड्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें डाली जा सकती हैं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक ऑनर अवार्ड्स कुड बी सपोजिंगली आप अपनी क्लास में, बीकॉम में, स्कूल में, you were made the representative of the class, so that is something which is an achievement. But if you write class monitor, it will become kind of a very difficult thing to understand कि class monitor is not something which is achieved, it is by chance. Sometime ऐसा भी मैंने देखा है हमारी क्लास में, हम जो स्कूल लेवल पे करते हैं कि सबसे शैतान बच्चे को ही क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है. so with that you can't carry an impression, but yes, if you have become an elected member of your class, that is an achievement कि लोग आपको recognize करते हैं as a leader, as a representative of their class. so वो एक achievement है. तो आपको लिखते हुए ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जो कि आपके बारे में कोई एक अच्छी नई छवि प्रस्तुत करती है, ना कि वो चीजें जो कि एक जनरल नॉर्मल आदमी कोई भी किसी भी टाइम पे बाय अपॉर्चुनिटी, बाय चांस बन सकता है. सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनर एंड अवार्ड्स एंड जनरल थिंग्स दैट हैपन. इसमें आप लिख सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर बॉडी, जैसे कि आपकी कोई संस्था में आपकी एफिलिएशन है, आप किसी यूथ काउंसिल में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपको सेक्रेटरी बनाया गया है, या आपको फंड रेजिंग का एग्जीक्यूटिव बनाया गया है. सो ये सब अचीवमेंट्स आपके काम आ सकते हैं, बिकॉज दैट शो मे बी दैट यू हैव सम स्किल्स इन मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, या आप सेल्स में अच्छे हैं, या आप कम्युनिकेशन किस किस तरह के लोगों से कर चुके हैं. तो इस तरह की एक इंफॉर्मेशन एंड इमेज आपकी डेवलप हो जाएगी. आपने कोई भी अवार्ड्स, प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स अगर जीते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिज्यूम में मेंशन करने के लिए, बिकॉज वो आपकी मेरिट को एनहांस करते हैं. वो दिखाते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो आपको स्टैंड आउट करती है फ्रॉम अदर पीपल. बट अगर आपके पास ऐसी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास ऐसी कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस कॉलम को स्किप भी कर सकते हैं. बट इट इज गुड. आप अगर अपने बैकग्राउंड में देखेंगे एंड कॉन्फिडेंस से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि शायद आप पहले इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो डोंट डिस्काउंट. ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कोई भी सक्सेस या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है. अगर आप प्रॉपरली स्कैन करेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, तो आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है. Even us, it happens with Right. us as well, Yeah. that when it comes to documentation, we have to recall. Right, absolutely. We have done something and still we don't remember it. In that case, you have to go to somebody, your friends, Absolutely. and you have to ask them. थोड़ा वो हो सकता है. हमारे साथ भी होता है, तो स्टूडेंट्स के साथ तो ऑफकोर्स होता ही है. इनफैक्ट प्रशांत, इसमें हम पूछेंगे कि अगर आप ध्यान दें, जैसे ये स्टूडेंट्स जो हमारे ऑडियंस हैं, अगर वो ध्यान दें तो यूथ फेस्टिवल होते हैं, इंटर क्लास टूर्नामेंट्स Very होते true, हैं, true. और कितनी बार तो हमने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर हम एक स्पॉन्सरशिप लेके आए हैं 5,000 रुपए की. Exactly. हम एक कंपनी के पास गए, हमने बोला हमारे कॉलेज में ये फंक्शन होने वाला है, तो क्या स्टूडेंट्स इसको भी इसमें डाल सकते हैं? बिल्कुल. आई थिंक आप जब अपने बारे में इंफॉर्मेशन स्कैन करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपने काफी कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो आपकी लीडरशिप स्किल्स, टीम में काम करने की स्किल्स या ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स को डिस्प्ले कर सकता है. उन चीजों को आपको हाईलाइट करने की जरूरत है, लेकिन बहुत ही थिन लाइन होती है. कई बार इसी इंफॉर्मेशन को हम गलत तरीके से प्रेजेंट करके देता हूं कि आई वॉन्ट अ कैरम चैंपियनशिप इन माई क्लास. अब कैरम चैंपियनशिप डज नॉट डिस्प्ले एनी स्किल, बट yes, if you talk about your being a captain in a particular team game, or if you talk about any organization of any event, that makes some importance कि आपकी skills के बारे में उसमें कुछ तथ्य मिलता है. So वो important area को आपको skip नहीं करना चाहिए. Ideally, you should really work towards finding some specific skills. And इस बात से एक important message ये भी है कि आप जब कॉलेज में हैं तो don't just be a part of a college just as a student. Right. Do something more. Yes. Add some extra curricular activities to your profile. वो आपके बहुत काम आएंगी जब आप जॉब ढूंढने जाएंगे. That will differentiate you. You're right. Right. Very true, very true. इनफैक्ट प्रशांत, अगर मैं इसमें ऐड करूं और एग्जांपल दूं, तो हर कॉलेज में एक फ्रेशर्स पार्टी होती है, एक फेयरवेल पार्टी Exactly. होती है,
और अगर हम इसमें लिखना चाहें कि हमने फ्रेशर्स पार्टी में पार्टिसिपेट किया है तो शायद वो कोई वैल्यू नहीं कन्वे करेगा, बट अगर हम ये कहें कि आई वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फ्रेशर्स पार्टी, Exactly. Right. That will make a difference. दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो आपको यही मौके, लाइक प्रशांत सेड, आई विल कम्प्लीटली अग्री, आपको ये छोटे छोटे मौके अपने इन 3 साल में 2 साल में ढूंढ लेने हैं जहां पे आप अपने रेज्यूमे के इस हिस्से को थोड़ा फ्लैश अप कर सके. Right. Now, today, lot of our students are essentially trying to gain extra experience while they are studying. And अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी का मतलब अगर आपकी खुद की दुकान है और आप उसमें बैठते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं काउंट करते हैं. एचआर या जो भी लोग आपके रिज्यूम्स को पढ़ रहे हैं, वो आपको इसेंशली आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आपने कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा है, उसको ही एक्सपीरियंस की तरह काउंट करने की कोशिश करते हैं. सो जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यूज द टर्म एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ वर्क हिस्ट्री or employment, so that you can include full and part-time jobs, self-employment, volunteer work, practicum, field experience, cooperative education experience, and a lot of different experiences that you may have had. So अगर आपने कोई काउंसलिंग एक्टिविटी करी है कॉलेज के अंदर, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. अगर आपने कोई पार्ट टाइम जॉब करा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप यूज कर सकते हैं. सो एक्सपीरियंस मीन्स वेयर एवर यू हैव वर्कड विद एन ऑर्गेनाइजेशन. इसेंशली आपको अगर इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको आप रिप्रेजेंट करिए. उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है. यू शुड राइट एट द फर्स्ट लेवल व्हाट वी मे कॉल एज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट पोजीशन, व्हाट डिपार्टमेंट दैट यू वर्कड अलोंग विद, एंड उसके नीचे आपने क्या क्या एक्टिविटीज हैंडल करी उसकी डिस्क्रिप्शन. तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे आपने क्या पोजीशन या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आपने उसमें वर्क किया. थर्डली ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक के पार्ट टाइम या फुल टाइम में आपने वो काम किया. थर्डली यू विल राइट इट एज अ प्रोफाइल ऑफ क्या आपने चीजें हैंडल करी. जब आप अपने काम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करें, ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स यूज करें जो आपके वर्क को प्रॉपर्ली हाईलाइट करता है. इन पर्टिकुलर शब्दों को, डिस्क्रिप्शन को हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं. एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब दोज पर्टिकुलर थिंग्स विच यू हैव डन इन योर जॉब. सो दे कैन बी सीन एज एडमिनिस्टर्ड, अरेंज्ड, built, designed, developed, implemented, ordered, performed. So you can write something like, I administered policies of accounting, auditing while in my work. You can say, I arranged for events in my organization, or I arranged management information system procedure in my organization, or you can say, I built a team, or I built a campaign. You can write something like, I designed the strategy to go for a particular marketing activity. So these words are direct indication कि आपने क्या responsibility, किस टाइप का एक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर करा है. एंड प्रशांत, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये एक्शन वर्ब्स की जब बात कर रहे हैं आप जी, तो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, Right. उसमें भी थोड़ा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यू नो एवरी टाइम व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स, यू नो and you are using the same pattern, Right. and every time you are putting stress on I, Right. you know, beginning with the I, every sentence will begin with I, तो उसमें भी थोड़ा वेरिएशन आई थिंक होना चाहिए. और Absolutely. आपको बताना भी है और ये बहुत भी आएगा. नहीं बताना है कि आप बता रहे हो. बिल्कुल. इनफैक्ट आई एम श्योर प्रशांत आगे हमें बताएंगे अच्छा, कि is it हम so? आई का तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं करेंगे ही रेज्यूमे नहीं. में, क्योंकि ये Exactly. मेरा That ही is what- रेज्यूमे that is what I want to है. ask. सो आई विल नॉट टॉक आई, बट लाइक प्रशांत सेड, डिजाइन द कॉलेज ब्रोशर. Exactly, without using I at all. यस, तो हमें पता है कि ये कमलेश का रेज्यूमे है और कमलेश ने कॉलेज का ब्रोशर डिजाइन The किया. only thing is arrogance नहीं दिखना चाहिए. एब्सोल्युटली. है ना? वो सेल्फ लव जिसको बोलते हैं ना, मैं नहीं होना चाहिए रेज्यूमे में, क्योंकि ये आपका ही रेज्यूमे है.
एंड आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं या आपका रिज्यूम पढ़ रहे हैं उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो लोग इन चीजों को समझते हैं. अगर आप लिख रहे हैं कि आई परफॉर्म्ड और आई प्लान्ड, सो दे अंडरस्टैंड व्हाट गोज इन प्लानिंग. सो यू डोंट नीड टू डिस्क्राइब इन ग्रेट लेंथ कि मैंने क्या क्या एफर्ट करे और क्या क्या नहीं करे. दैट विल लुक लाइक यू आर बुलिंग योरसेल्फ. आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और जब आप इस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसे नापसंद करते हैं. वेरी ट्रू प्रशांत, वेरी ट्रू. ये होता ही है कि अननोइंगली, यू नो, वी मेक मिस्टेक्स अननोइंगली. Overdo कर देते हैं हम सोचते हैं कि इसको डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी उसका रिवर्स इफेक्ट हो जाता है. यस सर. सही बात है, सही बात है. एंड प्रॉबेबली शायद, आई एम सॉरी प्रशांत, शायद एक्शन वर्ड से ये भी मतलब है कि आप पैसिव वॉइस बहुत मत यूज करिए. यस. वॉज डन नहीं, डिड. डिड. राइट. बिल्डिंग नहीं, बिल्ट. तो ये दिखा रहा है कि काम हुआ, काम किया, आप इन्वॉल्व थे. एंड रिमेम्बर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्शन चाहिए. Exactly. Right. So we look at a sample again, and where we see that we started with the address line, we went up to the objective, then our educational history, some experience if we have. Then थोड़े on फोन्ट्स थोड़े छोटे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड देम ऑल्सो. हाँ, तो आप सिर्फ नहीं, पढ़ेंगे बाद तो में भी शायद चलेगा. प्रशांत आपको एक पूरा सैंपल रेज्यूमे ही दिखा देंगे. सो दैट yeah, विल I think बिकम that would become much more easier for you to relate with. We have a sample resume Yeah. of an ex-student. This Say is better. Look at the Ashish. slide, please. Yes, please put in onto the slides. Yes. So Ashish has given his full address with an email ID, mobile number, and then further he has written his career objective to work in the field of banking and finance. So he has specified his specific requirement of what he wants to do. Academic qualifications in terms of degree, name of the institute, board, university, year of passing, and further to that different skills that he has procured. Say computer एक मिनट proficiency. में आपको इंटरप्ट करूंगी. इसमें आप देख लीजिए वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जो हम बात कर रहे जी. थे, शायद इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा. देखिए, Right. बीबीए. So highest degree is BBA. Sometime here in case आपने अभी BBA कंप्लीट नहीं करा है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली ईयर ऑफ पासिंग में आप लिख सकते हैं कि विल पास इन ड्यूरिंग 2008. एंड okay. in case you want to show your percentage or marks, you have to write specifically here that you have this up to the third year or the second year, so that the employer is clear about what is the status of your degree. Right? So this is how you have to represent in a tabular form that we are talking about. Now further to this, we have वहीं देख लो. yes. So now further we have like your skills and proficiencies that you may have acquired Okay. during your graduation. Like अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिफाई करिए कि आपने लैंग्वेजेस सीखी हैं या RDBMS सीखा है, विच गिव्स अ वेरी क्लियर इंटेंट कि आपको डिफरेंसेस एंड आपका फोकस पॉइंट ज्यादा कंप्लीटली क्लियर है. अचीवमेंट्स दैट वी सेड आर टू कम नेक्स्ट, एंड देन यू कैन कम अप टू समथिंग विच इज नोन एज इंटरेस्ट एंड हॉबीज. रुचि, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. इंटरेस्ट एंड हॉबीज इज वन एरिया जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफी अपने बारे में मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं. लाइक हॉबीज में एक स्टूडेंट का मैंने पढ़ा कि सिंगिंग. नाउ सिंगिंग इज is a very simple hobby which does not really demonstrate anything in you, and you can be a bathroom singer. So ऐसी situation में it does not say anything about you. So if you have put in something in your achievements, then it makes any meaning that you write something in your hobbies. So वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट को ऐसी चीजों को डिस्प्ले करिए जो कि एक एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट में हो. लाइक मैं इस रिज्यूम में जो आपको दिखा रहा हूं, इस रिज्यूम के अंदर आपको इंटरेस्ट में the student has written team sports or attending knowledge seminars or reading motivational books. Now this definitely talks about something which is of purpose to the employer. अगर आप उसके अंदर लिखते हैं मेरा इंटरेस्ट है कॉइन्स जमा करना या स्टैम्प जमा करना या घूमने जाना, ट्रैवलिंग, now that does not really show any kind of specifics into your एक्टिविटी. सो हॉबीज एंड इंटरेस्ट जो है वो आपके डायरेक्शन ऑफ कैलिबर
एब्सोल्युटली। या डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। इनफैक्ट प्रशांत, हम आपको इंटरप्ट भी करेंगे। जब आप ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं या आप कॉइन कलेक्शन की बात कर रहे हैं या फिर आपने स्टैम्प्स की बात की, तो आई विल ब्रिंग बैक टू द फैक्ट कि आपको आपका करियर ऑब्जेक्टिव याद रखना है। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है, फैंटास्टिक, इट मैचेज योर करियर टूरिज्म, इट मैचेज योर करियर ऑब्जेक्टिव, राइट। बट अगर आप फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है, तो उससे आपके एम्प्लॉयर को कुछ गेन नहीं हो रहा है। तो आपको ये बात कॉन्स्टेंटली ध्यान में रखनी है कि आपकी करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, एंड बाकी सब कुछ उससे मैच हो रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट, यस, और वो करेगा एम्प्लॉयर, तो उसको दिमाग में रखते हुए आपको हर बात तय करनी है कि इसको लिखे या इसको ना लिखे। एब्सोल्युटली। और दूसरी छोटी सी एक बात है जो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है, स्लाइड में आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट लिखे हुआ है ना, तो उसमें जो थर्ड लिखा हुआ है रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, तो जनरली क्या होता है कि जब हम सिर्फ रीडिंग ऐसा डाल लिखते हैं ना, देते हैं। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक। यस, इट कुड मीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। एग्जैक्टली। तो वैसे भी ऐसा है ना कि जहां पे भी आप कोई भी बात स्पेसिफिकली लिखते हैं ना, तो उसमें ऑनेस्टी अपने आप बढ़ जाती है ना। तो इट वुड लुक मोर ऑनेस्ट एज वेल। Honest जब आप and authentic. स्पेसिफिक चीजें लिखते हैं Right. तो ऐसा दिखेगा कि ये सही है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। Yes. एंड जैसा हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, काइंडली डोंट राइट थिंग्स लाइक वेब सर्फिंग, चैटिंग, यू नो, अभी आज के जनरेशन के लिए ये दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे यू नो कंटिन्यूअली डू ऑन अ डेली बेसिस। तो वो उनके genuine interests हैं। हाँ, जेन्युइन इंटरेस्ट है, बट वो आपको हाईलाइट करने से कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं। आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे ये एडवांटेज देगा पॉइंट या नहीं देगा। Absolutely. सो आप गलत Very ट्रैप में valid मत जाइए। डोंट राइट योर फेसबुक एड्रेस ऑन टू दिस और एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन which is not required by the employer, right? So then further you go into the area of your personal information, that is 20 like you write your date of birth, language is known, father's name, permanent address. If you have mentioned it above, there is no need of permanent address at this particular juncture. Now with this we come to very close to identifying what are the things that can still be done to make the resume more attractive. Now let us just look at the final points at a very quick stance now, where we have beyond this what you can write is professional affiliations and activities. Supposingly आपने कोई एक particular body, जैसे कि कोई accounting body, उसमें आपने एफिलिएशन ले रखा है, या आप किसी पर्टिकुलर बैंकिंग इंस्टीट्यूट के साथ में एफिलिएटेड है एंड यू पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज, सेमिनार्स। सो वो एक्टिविटीज के बारे में लिखने से आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड आइडेंटिफाई होता है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ position that you have taken in these particular things, kindly do mention those particular things. And activities which could be diverse in terms of attending different type of seminars, different type of workshops. अगर आपने कोई skill acquire करी है उनमें, तो वो चीजें आपको लिखने में आइडेंटिफाई करने में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम फाइनली एक फुल एक डूज एंड डोंट्स के ऊपर वापस से एक इंफॉर्मेशन वापस से हम एक ले सकते हैं। उसमें एक एडिशनल कैटेगरी जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, रेलेवेंट कोर्स वर्क। जब आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो एक कोर्स वर्क जो आप कर रहे हैं उसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, लेकिन अगर आपने कुछ स्पेसिफिक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है ड्यूरिंग द कोर्स वर्क, दैट कैन ऑल्सो बी शोन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। लाइक अगर आपने रिसर्च मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग सम डेटा करा है, कोई डेटा कलेक्शन करा है, तो वो कोर्स वर्क ही आप दिखा सकते हैं जिसमें आप कोई न्यू चीज आपने ऐड करी है। बट नॉर्मल जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में लिखने का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं रहता है। बियॉन्ड दैट, अगर आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट किया है या आपने पर्टिकुलर कोई क्लासेस कंप्लीट करें, वो सब चीजें जो हैं आपकी एडिशनल कैटेगरीज में आ सकती हैं। दीज कम्स आफ्टर द क्वालिफिकेशंस। मैं इसमें ऐड करूं अगर प्रशांत, तो आप बीकॉम कर रहे हैं और आपने साथ में टैली का कोर्स किया हुआ है,
तो वो टैली का कोर्स आपकी एडिशनल कैटेगरी में बिल्कुल क्लियरली फॉल करता है, क्योंकि वो आपके करियर ऑब्जेक्टिव को सब्सटैंशिएट कर रहा है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सब्सटैंशिएट कर रहा है, और ये एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टैली आपके पूरे कैंडिडेचर को एनरिच कर रही है. Right. So now we go on to talk about the do's and don'ts of the resume. Like I would put it onto the slides. Do not include personal information too much, like age, sex, height, weight, marital status, photograph, unless it has been specifically asked for. आपको अपने job employer का जो ad है, जो उसने एडवर्टीजमेंट पुटअप करा है, उसके अंदर अगर ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली मांगी गई है, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करने की जरूरत है, अदरवाइज देयर इज नो नीड. हाँ, मैं इसमें भी अगर एग्जांपल दूं आपको, तो आप किसी होटल में फ्रंट ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो शायद वो आपसे आपका फोटोग्राफ मांगेंगे, तो आप फोटोग्राफ अटैच करोगे, तब आप ये नहीं बोलोगे कि ये तो नहीं की जाती है क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने मांगी है. बट अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं मांगी है, तो आप कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं देंगे. As you have already said, do not pronounce I and do not use I in any of the sentences. That is a courtesy. Do not include references except in situation where it has been specifically asked for. एक जो last point होता है वो होता है references. Many students write references of their college professors, of their teachers, of their uncles, aunties and other things, which is not very desirable. Correct. References तभी आपको देने होते हैं जब आपको मांगे जाते हैं. So kindly do not write references, or even write reference will be furnished later on requirement and this and that. There is no need on that particular case unless until it has been specifically asked for. And do not clutter your resume with non-essential information. आपको अपने परिवार वाले आपको ये दिखाने के लिए कि मेरे फादर बहुत हाई पोजीशन पे, मेरे अंकल बहुत हाई पोजीशन पे हैं, आप ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आप क्लटर बनाते हैं, आप बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो दैट विल स्पॉइल द इमीडिएट समरी ऑफ योर रिज्यूम. एज फर्स्ट स्लाइड में ही आपको पता चल गया था कि आपका एम्प्लॉयर हार्डली 35 to 40 सेकेंड्स में आपको रिव्यू करना चाहता है, तो वो इतनी सारी क्लटर ऑफ इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज होने की सिचुएशन बना देता है. And do not make any misrepresentation. Ruchi has very clearly said, biodata, CV or resume, whatever it may be, is a legal document. कल के दिन आपका एम्प्लॉयर इसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो आपको जॉब से निकाल सकता है. इट इज हिज राइट. So it becomes a legal document for your purpose. Do not do misrepresentation. डिग्रीज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देना इज रॉन्ग, एथिकली, मॉरली एंड लीगली. सो डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ ट्रैप. That was a very good piece of advice. Friends, here we come to the conclusion. As they rightly said, that your resume is your identity. It's your face. So that is something which is very important while you write. And we also say this in the earlier lectures also we discussed that it is always important how you say, than what you say sometimes. So resume also conveys the same thing. Professor Prashant, a very practical piece of advice you gave us on co-curricular activities. I hope the students will definitely remember this. I hope that so. Don't underestimate that these activities would not be of any benefit at all. They would also be beneficial to you, and they would definitely enhance your personality and aspects. That was very informative, the whole lecture. We have not been able to justify the other part of the topic, that is application, but that is quite obvious because in 1 hour it is very difficult to speak all these three things, but very nicely spoke on resume and CV. And I think application we might consider this in the later lectures also, no problem. I would like to take an opportunity to thank ICFI Business School, and we are obliged, Professor Prashant and Professor Ruchi. We are very happy, and I hope the students have enjoyed a lot. Friends, let me remind you that you can definitely give your feedbacks, and let me remind you that name, email ID of our Sandhan group, that is sandhan_biseg@googlegroups.com. On this you can write your emails, and your feedback will definitely reach to us. Thank you very much. Thank you, Professor Prashant.